So, hello everyone, my name is Pritham, and in today's video we are going to discuss the case whose name is Ramesh versus State of Rajasthan. Okay, so I'm going to write, and we have to discuss this case, and let's see what are the things that we learn from this case, and what are the observation of the Honorable Court on this case. So the case name is Ramesh versus State of Rajasthan 2025, and the judgment came on 9 January 2025. Apart from that, let's start and see what the facts of the case says and what is the observation of Honorable Supreme Court. So, a bench of justices, by the way, title is Settlement Between Parties, resulted in granting probation. Okay, let's write it down the title of it. Settlement between parties resulted in granting probation. ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे. As far as I know, probe is जांच, and provision is that procedure, that duration in which court observe the nature of the person on which the trial is going on. So on that duration, when the trial is going on and the observation of court on that person is called somewhere probation. We will get it out, we will come to know this in the further fact. I am also not sure, so let's see what it says. A bench of justices B.V. Nagaratna and Nongmai Kapam Koteswar Singh. So we have to write the name of the judges, Honorable Supreme Court judges. Justice B.V. Nagaratna and Justice Nongmai Kapam Koteswar Singh. This is the name of judge. Hmm. The fact says further, B.V. Nagaratna and Nongmai Kapam Koteswar Singh of the Supreme Court held, इन्होंने ऑब्जर्व किया, कोर्ट while evoking its jurisdiction under article 142 of the constitution. अब इवोकिंग का मतलब समझते हैं. व्हाट इज इवोकिंग? इवोक इज बेसिकली
invoking. हाँ, so while invoking means use करते हुए. So the Supreme Court held while invoking its jurisdiction, अपने jurisdiction का use करते हुए, under Article 142 of the Constitution, granting same benefit of Probation Act to appellant which was granted to other accused in cross case. So सुप्रीम कोर्ट ने अपनी jurisdiction का यूज करते हुए, कौन सी jurisdiction का, जो कि 142 आर्टिकल 142 में आता है, आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आर्टिकल 142 क्या कहता है वो हमें देखना पड़ेगा. हम्म. uh, 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 uh. You can basically skip the video na, whenever you think that it is taking a lot of time, so you can skip the video, if you a portion accordingly, so that you can save your time. Apart from that, let me find out the my constitution book. Hmm. Got it. So सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करते हुए, व्हाट 142 सेज, hmm enforcement of decrees and orders of Supreme Court and orders as to discovery, etc. Enforcement of decrees and orders of Supreme Court and orders as to discovery, etc. And what it says, the Supreme Court, in the exercise of its jurisdiction, may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice. सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, एक ऐसा ऑर्डर प्रिपेयर कर सकती है, या एक ऐसा जजमेंट, एक ऐसी डिग्री डिग्री पास कर सकती है जो कि
जस्टिस के लिए रिक्वायर्ड हो, कंप्लीट जस्टिस के लिए रिक्वायर्ड हो, इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, कोई भी मैटर जो उनके पास आता है, एंड any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India। और वो जो डिक्री और ऑर्डर है वो जब पास होगी तो वो थ्रू आउट द इंडिया उसकी जो वैलिडेशन होगी, जो उसका इंपॉर्टेंस होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में होगा। इन सच मैनर, ऐसे वो उसकी इंपॉर्टेंस ऐसी होगी मानो कोई लॉ पास किया गया हो पार्लियामेंट के थ्रू, until provision is in that behalf is so made in such manner as the president may by order prescribe, exceptions are apart। तो एक्सेप्शन को छोड़ के जस्टिस के लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा ऑर्डर दे सकती है, ऐसा डिग्री दे सकती है ताकि सामने वाले व्यक्ति को जस्टिस दिया जा सके। कब? जब वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आए, ठीक है, और वो जो ऑर्डर है, वो जो डिग्री है, वो ऑल ओवर इंडिया इम्प्लाई हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा वो, ठीक वैसा ही उसे ऐसा माना जाएगा जैसे कि एक पार्लियामेंट का लॉ पास हुआ हो। सेकंड इसका क्लॉज कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट द सुप्रीम कोर्ट शैल एज रिस्पेक्ट द होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any documents, or the investigation or punishment of any contempt of itself। apart from that सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, कुछ ऐसे ऑर्डर्स इशू कर सकती है ताकि कोई व्यक्ति जो है वो उसको उसकी उसकी उस उसको प्रेजेंट किया जा सके कोर्ट के सामने, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। ठीक है, कुछ मंगवाना हो, कोई किसी चीज़ की डिस्कवरी की रिक्वायरमेंट हो, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करवाना हो, प्रोडक्शन मीन्स उसको कोर्ट के सामने लाना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, कोर्ट चाहती है कि उसको देखना, तो वो चीज़ मंगवाने के लिए, या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, या फिर कोई उल्लंघन करता है कोर्ट के ऑर्डर्स का, तो उसके लिए जो पनिशमेंट होगी, इन सारी चीज़ों के लिए कोर्ट जो है रूल जो है इम्प्लीमेंट कर सकती है, बना सकती है। So this was the article 140 142 of constitution। So what 142 says, enforcement of decrees and order of supreme court and orders as to discovery। ठीक है, तो इसमें दो चीज है, एक जस्टिस के लिए ऑर्डर डिग्री पास कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई मिसकंडक्ट ना कर दे, कोर्ट के ऑर्डर्स का उल्लंघन ना करे, इसलिए भी वो ऑर्डर कोई भी ऑर्डर इशू कर सकती है। दिस वाज 42। अब इसमें कह रहे हैं कि 142 के पावर का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए क्या किया, प्रोविशन एक्ट है हमारे पास, देयर इज अ प्रोविशन एक्ट, ये एक एक्ट है, इसमें जो बेनिफिट था, इसमें जो बेनिफिट मिला था वो ग्रांट कर दिया एपेलांट कौन, जो कोर्ट में प्रेजेंट हुआ अपनी अपील लेके, और ये जो बेनिफिट था ये मिला हुआ था किनको, अदर एक्यूज्ड को। तो जो केस रहा होगा उसमें एक्यूज रहे होंगे, तो कुछ एक्यूज को जो है क्रॉस केस के ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग क्रॉस केस जो बेनिफिट मिला था, जो बेनिफिट मिला था वही बेनिफिट सुप्रीम कोर्ट ने 142 का यूज करते हुए एपलांट को दे दिया। दिस वाज द फर्स्ट पैरा। लेट मी राइट पैरा नंबर 1 starts from here। The second para says the सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया, having gone through the records,
सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जब उन्होंने रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट किया, उसकी जांच पड़ताल की, वी आर सर्टिस्फाइड दैट द टू क्रिमिनल केसेस वर इन रियलिटी क्रॉस केसेस filed by two groups of the family because of certain family disputes, and genesis of both the criminal cases can be traced to the clash between the two conflicting groups which occurred on the same day on 1/1/1993. What it says, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद हम इस बात से संतुष्ट हैं कि दोनों आपराधिक मामले वास्तव में परिवार के दो समूहों द्वारा कुछ पारिवारिक विवादों के कारण दर्ज किए गए हैं, क्रॉस केस थे, और दोनों आपराधिक मामलों की उत्पत्ति दो परस्पर विरोधी समूह के बीच हुई झड़प से जुड़ी है। ठीक है। सो दो हाउसेज हैं, इसमें दो परिवार हैं, फैमिली नंबर वन, फैमिली नंबर टू। अब क्या हुआ, इन्होंने केस किया फैमिली नंबर टू पे और इन्होंने केस किया फैमिली नंबर वन पे। सो दिस इज क्रॉस केस, ये क्रॉस केस हो गया, एक दूसरे पे इन्होंने केस कर दिया। कन्फ्लिक्ट क्या था, व्हाट वाज द इशू? फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट था। अब कुछ रहा होगा, और दोनों ही केस जो है ट्रांस टू क्लैश बिटवीन टू कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप विच अकर्ड ऑन द सेम डे ऑन, जो कि अकर्ड हुआ, कब अकर्ड हुआ? क्रॉस केस जो है और फैमिली डिस्प्यूट सेम डे पे अकर्ड हुआ, दोनों ही। डेट क्या थी? 01/01/1993 मॉर्निंग, of which the disputing party gave their own version of the conflict incident, resulting in filing of two FIRs before the same police station and culminating into two separate criminal proceeding and trial. अब इसमें हुआ क्या, दोनों ही फैमिली ने अपने अपने साइड की स्टोरी बताई, और एक ही पुलिस स्टेशन में दो केसेस फाइल हुए, बाय फैमिली नंबर वन, बाय फैमिली नंबर टू। अब दोनों की प्रोसीडिंग जो है अलग अलग चलेगी, दोनों का ट्रायल अलग अलग चलेगा, दोनों सेपरेट केस हो गए। थर्ड पैरा, द सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वी आर ऑल्सो सेटिस्फाइड दैट व्हेन द सेकंड ट्रायल was going on before the court of the magistrate, the disputing parties decided to bury their differences, and a compromise was reached between the parties, which was placed on record and duly taken into consideration by magistrate. जब सेकंड ट्रायल चल रहा था तो दोनों ही पार्टी ने दोनों ही पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज करने का निर्णय लिया, और ये चीज रिकॉर्ड में भी देखी जा सकती है। किसके सामने? on before the court
ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट के सामने जब सेकंड प्रोसीडिंग चल रही थी, सेकंड ट्रायल चल रहा था, तो दोनों ही पार्टी ने, पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2 ने डिसाइड किया कि चलो कंप्रोमाइज किया जाए। पैरा 4 says the Supreme Court held, we have also noted that the appellant had apprised the High Court of the aforesaid settlement between the parties, which was taken into consideration by the court of the first magistrate in the said criminal number itna, but the same was not favorably considered by the High Court, and the High Court proceeded to consider the matter on merits. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमने यह भी देखा है कि अपीलकर्ता ने पक्षों के बीच में उपरोक्त समझौते के बारे में उच्च न्यायालय को अवगत कराया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन कहती है कि जब वो डेटा एनालाइज कर रहे थे, दैट वाज व्हाट रिकॉर्ड, व्हेन दे वर गोइंग थ्रू द रिकॉर्ड्स, सो कोई ऑर्डर जो है, वो मैटर जो है मजिस्ट्रेट के अलावा हाई कोर्ट में भी गया हुआ किसी डिसीजन को लेके, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की रिक्वायरमेंट में, कोई पर्टिकुलर डिसीजन बनाने के रिक्वायरमेंट में हाई कोर्ट में जब वो गया था, तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, दोनों अलग मैटर है, तो दोनों को अलग ही डिसाइड किया जाना चाहिए। ठीक है। सो हाई कोर्ट ऑफ द फोरसेट सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज विच वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट, क्योंकि मैजिस्ट्रेट जो है वो तो राजी हो गए थे, क्योंकि उनके सामने सेटलमेंट हो रहा था, कंप्रोमाइज हो रही थी चीज़ें। तो जब वो हाई कोर्ट में गए, उन्होंने सेम अब चीज़ें कोर्ट को समझाने की कोशिश की, तो हाई कोर्ट डिसाइडेड कि मैटर का जो मेरिट है उसके बेसिस पे ही डिसीजन आना चाहिए। ठीक है। मतलब क्या सही है क्या गलत है उसके बेसिस पे डिसीजन आना चाहिए, ना कि जस्ट बिकॉज दे आर एग्री टू मेक सम डू सम सेटलमेंट, उस पे डिसीजन ना आए तो ठीक है, और उस पे ना हो तो ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरिट है केस का, उस पे डिसीजन आए तो वही होना चाहिए, मेरिट पे डिसीजन होना चाहिए। मतलब दैट इज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। द प्रेजेंट अपील, दिस वन इज फिफ्थ para. The present appeal has been preferred against the impugned judgment and order dated 9/11/2023 passed by the High Court. So ये जो अपील है, प्रेजेंट अपील जो सुप्रीम कोर्ट में आई है, ये ये चैलेंज करती है हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को जो आई थी 9/11/2023 को, पास्ड बाय हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। अब ये जो ऑर्डर है जो कहता है मेरिट बेसिस पे ही मैटर को डिसॉल्व करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए, तो इसको चैलेंज कर देता है। जब इसको पार्टी चैलेंज करती है और सुप्रीम कोर्ट में जाती है,
और इसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्सेप्ट कर लेती है, which partly allowed the appeal preferred by the appellant and other accused against the order of conviction dated now passed by the additional district and session judge. Hmm. Which partly allowed the appeal preferred by the appellant. तो appellant जो है वो अपील जब करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो वो एक्सेप्ट किया जाता है। एक्सेप्ट करने के बाद एक ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन, जो कि आया 31 अक्टूबर 1995 को, पास्ड बाय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, इनके द्वारा पास किया गया, राजस्थान के ही। कब? 1995 में। क्या है ये ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन, जो कि आपको पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये ऑर्डर किसने दिया? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजस्थान। इसके रिगार्डिंग अपील गई एपलांट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। सो हियर, टिल हियर आई कैन सी, एक तो ये है हाई कोर्ट का डिसीजन ऑर्डर जो कहता है मेरिट बेसिस पे मैटर डिसॉल्व करो, और दूसरा ये है जो कि एक सुप्रीम, जो कि एक सेशन जज के द्वारा ऑर्डर दिया गया है जिसमें कन्विक्शन है, बट दे वांट कि सेटलमेंट हो जाए ऐसा। तो ये दो अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। दिस इज पैरा 6। द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज in the aforesaid session case had convicted the appellant under section 148। अब जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वो कन्विक्ट कर देती है एपलांट को, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 148, 307, 326, 323, 452 ऑफ आईपीसी, ऑफ आईपीसी। तो अब इसको देखना पड़ेगा कि ये सेक्शंस, ये जो सेक्शंस हैं ये क्या कहते हैं। ऑफ आईपीसी 148 क्या कहता है, इसके टाइटल क्या कहता है। 148 says writing
armed with deadly weapon। 307 कहता है आर्म विद डेडली डेडली वेपन। ठीक है, उपद्रव मचाने के लिए उपद्रव मचा रहे हैं, ऊपर से हथियार है उनके हाथों में। 307 क्या कहता है? 307, what 307 says? Attempt to murder। What 323 says? Punishment for voluntarily causing hurt। किसी को चोट पहुंचाने के लिए जो पनिशमेंट है वो 323 में मेंशन है। उसके बाद 326 says voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons और मीन्स कि हाथ में खतरनाक हथियार हो और उससे ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई हो किसी व्यक्ति को, तो उसके रिगार्डिंग 323 सॉरी 326। 452 देखते हैं। व्हाट 452 सेज? हम्म 452 हाउस ट्रेसपास, घर में घुस जाना। आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हार्ट असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, की घर में ही उसको बंद कर देना, मतलब पकड़ के रखना, और पहले प्लान करके आना कि उसको मारेंगे पीटेंगे, और घर में घुस जाना, दैट इज 452। सो ये सारे चार्जेस जो हैं, ये इन चार्जेस को इनके बेसिस पे पनिशमेंट मिलती है, कन्विक्ट कर दिया जाता है अक्यूज को। इसके अलावा पांच और भी अक्यूज्ड हैं। एक तो ये हो गया जो एपलांट हो गया, बाकी पांच और है अक्यूज्ड। और दिस इज 5 अदर accused। जिसमें बाकी जो हैं उनको कन्विक्ट किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ 148, 452, 323, 326 एंड 325। अब इसमें कौन कौन से मैचिंग है? 148 मैच हो रहा है, 452 हो रहा है, 323, 326 एंड 325 जो है वो नहीं है ऊपर। सो व्हाट 325 सेज?
हम्म। पनिशमेंट फॉर voluntarily causing grievous हार्ट। ये दो परिवारों के बीच का झगड़ा है, ठीक है। तो दोनों लड़ते हैं, बाद में चाहते हैं सेटलमेंट करने के लिए, बट जो सेकंड केस में चाहते हैं कि सेटलमेंट हो, क्रॉस केस कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। केस जो है मैजिस्ट्रेट अलाउ कर देते हैं कि हाँ ठीक है सेटलमेंट किया जा सकता है, बट ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट में अप्रोच किया हुआ होता है उन्होंने, तो हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, ऑन बेसिस ऑफ मेरिट यू हैव टू डिसाइड द केस। सेशन कोर्ट जो है इनको पनिशमेंट प्रोवाइड कर देता है, और क्योंकि एज हाई कोर्ट से कि नहीं कर सकते सेटलमेंट, ठीक है। सो पनिश करो, जो क्राइम हुआ है उसके बेसिस पे पनिश करो। तो ये चार्जेस हैं, इन चार्जेस के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जो है, सॉरी सेशन कोर्ट जो है वो कन्विक्ट करता है अक्यूज को। अक्यूज जो है एक के साथ और पांच और भी हैं, तो वो तो कन्विक्ट होता ही, उसके अलावा पांच और भी कन्विक्ट होते हैं, उन पे अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग चार्जेस फ्रेम हुए हैं उन पे। तो वही एपेलेंट जो है बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाता है अपील लेके। आगे देखते हैं इसको। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का इनसे कंसर्न नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है इससे। एपेलांट रमेश से। जो पनिशमेंट इसको दी गई हुई है उससे सुप्रीम कोर्ट का लेना देना है। अब आगे चलते हैं, दैट इज सेवंथ पैरा। The present appellant Ramesh and other accused prefer a common appeal before the High Court of Judicature of Rajasthan at Jaipur bench in this against the judgment and order dated 1995 of additional district and session judge। तो रमेश जो कि accused हैं और other accused ये कॉमन अपील लेके जाते हैं, एक साधारण अपील लेके जाते हैं किसके पास? हाई कोर्ट के पास। राजस्थान, ऑफ कोर्स राजस्थान हाई कोर्ट ना। अगेंस्ट द जजमेंट, किसको चैलेंज करते हुए? अगेंस्ट द जजमेंट एंड ऑर्डर 31/10/1995 को जो जजमेंट और ऑर्डर सेशन कोर्ट के द्वारा दिया गया, उसको चैलेंज करते हुए, देखो ऊपर होगा मेंशन। ये है ना ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन 31/10/1995 पास्ड बाय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो इसको चैलेंज करते हुए, इसको ही चैलेंज करने के लिए वो हाई कोर्ट गए थे। अब आगे देखते हैं।
8 para. The High Court, in respect of four appellants, namely, अब जब ये चैलेंज करके हाई कोर्ट के पास जाते हैं, तो हाई कोर्ट क्या करता है? फोर एक्यूज्ड है, ठीक है, चार एक्यूज्ड एप्लांट एप्लांट ये एप्लांट जो है ये हाई कोर्ट जाते हैं, ठीक है, चार एप्लांट, जैसे कि आर, जे, एस एंड एस। ये चारों जो हैं ये गए कहाँ? हाई कोर्ट, चैलेंज करते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का ऑर्डर जिसमें इनको कन्विक्शन मिल रही है। हाई कोर्ट जो है इसको अलाउ कर देता है, अपील को अलाउ कर देता है, allowed the appeal and set aside the order of their conviction passed by additional district and session जज। तो इनका जो ऑर्डर है, जब ये हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं तो इनकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है और जो इनको कन्विक्ट किया गया था उसको सेट असाइड कर दिया जाता है। तो चार का तो ऑर्डर सेट असाइड हो गया, बचा एक। The same was partially allowed by setting aside his conviction as regard appeal preferred by another appellant। एक और appellant जो होते हैं, that is K। अब K जो होते हैं इनका पार्शियली सेट असाइड किया जाता है, मीन्स दो सेक्शन जो होते हैं, एक तो 148 एंड 149, इसको सेट असाइड किया जाता है, बट इसको हटा दिया जाता है। बट सेक्शन 307, 326, 325 एंड 452 है, इसको नहीं हटाते हैं, इसको लगे रहने देते हैं। इन दोनों सेक्शन को हटा देते हैं के लिए। के अलग से अप्रोच करता है कोर्ट में, उनका तो हट गया चारों का, ऊपर वाले आर, जे, एस इनका हट गया। के जो है हु इज अनदर एक्यूज्ड, उसके दो सेक्शन हटा देते हैं उसके ऊपर से, बाकी 1, 2, 3, 4 ये चारों लगे रहने देते हैं। 9th पैरा। As regard the present appellant Ramesh, the appeal was partly allowed and his conviction and sentence
under section 307, 149, 148 and 149 IPC was set aside and he was acquitted of these charges. However, appellant Ramesh appeal partly allowed and his conviction. बात करें अगर appellant appellant रमेश की, तो इनका जो अपील है वो पार्टली अलाउड किया जाता है और सेक्शन 307, 148 एंड 149 ऑफ आईपीसी इनका सेट असाइड हो जाता है। सेट असाइड हो गया। नाउ सी, however the high court affirmed his conviction under, but हाई कोर्ट जो है इनके ऊपर 326, 325, 452 एंड 323 का जो चार्ज है ये लगे रहने देते हैं। ये लगे रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए रमेश जो है एपलांट आर ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, appeal preferred by Ramesh is partially allowed and his conviction and sentence under 307, 148, 149 IPC is set aside and acquitted from these charges, but his conviction under section 326, 325, 452 and 323 IPC is affirmed. Further sentence is modified and appellant Ramesh is sentenced as under section 326 rigorous imprisonment of 6 months along with a fine of 5,000. In case of default of fine, will undergo further sentence of 1 month. So इसके जो है कुछ सेक्शंस हटा दिए जाते हैं एपलेंट के और कुछ जो है लगे रहने दिए जाते हैं, जिसको लेके ये कोर्ट में पहुंचते हैं बागे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 326 के अकॉर्डिंग टू 326 इनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलता है 6 महीने का, 6 मंथ, प्लस 5 के फाइन। In default of fine, he have to go 1 more month of imprisonment अगर वो पे नहीं करते हैं इतना तो। पहला। दूसरा, 325 के अकॉर्डिंग उनको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है फॉर 2 मंथ्स अलॉन्ग विद 10 के फाइन। अगर नहीं देते हैं पैसे तो 7 days एडिशनली।
452 simple imprisonment for 1 month plus 1000 फाइन, नहीं दिया तो 7 days, 7 days. Fourth, 323 simple imprisonment of 7 days, 7 days. Appellant Ramesh and Kilari are also entitled for set off under section 428 CRPC, and substantive shall run concurrently. Concurrently. ठीक है, तो ये सारे पनिशमेंट जो हैं अब कंफर्म हो जाते हैं कि ये सारे इनके साथ गो थ्रू करना पड़ेगा, बट कुछ जो सेक्शंस हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, उनको अल्टर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है ऑर्डर के थ्रू, सुप्रीम ऑर्डर के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कंकरेंटली चलेंगे, मींस ये साथ साथ चलेंगे, मतलब 6 महीने हैं, उसी 6 महीने में ये 2 महीना भी चला जाएगा, उसी 6 महीने में 1 महीना भी चला जाएगा, उसी 6 महीने में 7 दिन भी चला जाएगा। तो टोटल उनको ये 6 महीना जाना है, और इसके अलावा 5 और 10, 15 और एक 16,000 का फाइन उनको देना पड़ेगा। दैट्स इट। सो दिस वाज द केस। ठीक है, जिसमें जिसमें लेट अस क्विकली रिकॉल ऑल दोस पॉइंट्स। दो फैमिली के बीच में झगड़ा होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रॉस एफआईआर कर देते हैं। क्रॉस एफआईआर करके वो जब मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो उनकी कुछ टाइम बाद उनका कंसर्न रहता है कि इसको रिजॉल्व कर लिया जाए विद द हेल्प ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट कर लिया जाए, बट सेटलमेंट नहीं हो पाता है। हाई कोर्ट कहता है कि इसको मेरिट बेसिस पे डिसाइड करो। मेरिट बेसिस पे जब ये डिसाइड हो रहा होता है तो जो सेशन कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जो पनिशमेंट दी है उसको चैलेंज जब वो हाई कोर्ट में करते हैं तो कुछ उसको अल्टर कर दिया जाता है। उसमें अम, जो चार्जेस उन पे फ्रेम हुए हैं उसमें कुछ चार्जेस जो हैं उनमें से वेव ऑफ कर दिए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जब एक दूसरा एक्यूज जाता है तो उसको भी सेम वही पनिशमेंट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझते हैं जैसे 4 एक्यूज गए तो उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट मिली, उनको बताया गया कि आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। वहीं पर एक जो एक्यूज है जो अपना ट्रायल सेपरेटली करवा रहा था तो उसके लिए दूसरा पनिशमेंट, जबकि एक्ट दोनों का सेम था। तो उस बेसिस पे वो जब सुप्रीम हायर कोर्ट पे अप्रोच, एपेक्स कोर्ट को अप्रोच करता है तो उसका कंसर्न रहता है कि इन्होंने जो क्राइम किया उनके लिए ये पनिशमेंट, बट मेरे लिए वाई हायर, सो मुझे भी वो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर यूज करके दोनों का बैलेंस कर देता है। मींस हाई कोर्ट कुछ सेक्शन से इसमें अल्टर करता है, अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोनों के लिए अपनी पावर यूज करके सेम एक जैसा कर देता है। एज फार एज आई हैव ऑब्जर्व in this case, if the fact says something different, so you can share your opinion freely. Okay, and the name of the case was Ramesh versus State of Rajasthan, dated 25, and the title was Settlement Between Parties Resulted in
granting probation. And that's what decided, we what discuss in this class. So that's it. Thanks for seeing this, and kindly inform me whatever your observation says. Okay, so have a good time.